Hello everyone. Welcome back to class 10 math series of ICSE board provided by Learners Paradise. In the last part we learned more about locus, what is locus, what are the different theorems related to it, and today we are going to continue the concepts more about locus. So friends, be ready with your copy and pen so that you can note down the important points. So friends, let's start. In the last part, we read about these theorems, what is locus, and the three important theorems. That first one was the single point locus. If a distance is fixed from a single point, what will you get? And the second was two different points, and the condition of finding the locus was that the locus should be always equidistant from the two fixed point. And the third theorem was about the three different non-collinear points, and to find a locus of a point which is equidistant from the three non-collinear points. See students, if you haven't read the first part or haven't seen the first part of this locus, so please I would recommend you to please first go through the part 1 and then come to this video. So friends, yesterday we read about this locus in some standard cases, and we read that if we need to find a locus of a point between the two parallel straight lines, right, not curved, straight lines, so the answer will be what? The midway, a line parallel to the two parallel lines but midway. I had explained you why it will be in the midway, and just reverse of it was also explained in the last class. So let's continue with the third most important part of this question, that is, what if a circle, center of a circle, assume this is a wheel, and if it's rotating means it's moving, assume this point, if it's moving means what? Circle is moving means this point will continue to touch the ground. Will it continue to touch the ground or it will move? See, right now this point A is in contact. Later on this point will be here. Later on what you will observe, see this point, if it moves in this direction, you will find this point to be here. Then a bit more time you will find here, then here. In this way you will observe the pattern. This is about the point of the circumference of the circle, friends. But when we need to find the locus of the center of the circle, so what will it impact? Will it change its position? Yes, it will change its position, but the distance of this, if assumed this is a straight line, this will remain the same. Means what? We will be getting a new straight line just parallel to this, and radius equal to distance equal to radius of the circle. ओके बच्चों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया. तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ में क्या एक्सप्लेनेशन करना चाहता है. फोर्थ में क्या है बच्चों? द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इनसाइड अ सर्कल and is equidistant from two points of the circle is the diameter of the circle which is perpendicular to the chord of the circle joining the given. अब बच्चों क्या बोल रहा है कि अगर सर्कल का कोई भी दो पॉइंट ले, है ना, कोई भी दो पॉइंट लेते ये वाला, यानी एक chord बनेगा. अब बोल रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इनसाइड अ सर्कल, पहली बात तो अंदर होना चाहिए, and is equidistant from two points of the circle. अब इन दो पॉइंट से इक्वल होना चाहिए बच्चों. तो आपने इससे पहले पढ़ा है कि हमने खुद ही देखा है कि सेंटर से ना बच्चों ये रेडियस इक्वल होता है, सबसे पहली बात तो, है ना.
ये रेडियस हो गया बच्चों, तो ये इक्वल हो गया, ये हमें मूविंग पॉइंट मिल गया बच्चों। अब कंडीशन क्या है, हमेशा आपको क्या रखना है, हमेशा क्या रखना है बच्चों, हमेशा आपको ये मूविंग पॉइंट फिक्स आपको मिल गया और डिस्टेंस फिक्स रखना है। मतलब आपको इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते जाना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते जाना है। तो ये तो सेंटर ऑफ द सर्कल था बच्चों। अब आप देखोगे कि आपने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि 2 पॉइंट से अगर आपको एक लोकस बनाना है जो कि ऑलवेज इक्विडिस्टेंट रहे इससे, है ना, तो आपने क्या पढ़ा था, हम लोग लाइन ज्वाइन कर देंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से जब आप इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ये भी 2 पॉइंट हो गया, बस डिफरेंस क्या है बच्चों, ये इनसाइड द सर्कल है, तो ये 2 पॉइंट ही है, मिलना तो आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है आंसर में, ठीक है ना बच्चों। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनता है तो देखो ये सेंटर से पास करेगा, राइट, ये सेंटर से पास करना एकदम गारंटी है कि ये सेंटर से ही पास करेगा, क्योंकि आप कोई भी दूसरा कोई भी सर्कल लेके देखो, आप सोचो ऐसे एक लाइन बना रहे हो, ठीक है ना, तो ये कॉर्ड आ गया। सबसे पहली बात तो आप इक्विडिस्टेंट पॉइंट खोजोगे तो क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा, क्यों, ये रेडियस बन रहा है बच्चों, ठीक है ना, ये मूविंग पॉइंट मिल गया। या फिर आप सोचो 2 पॉइंट का मिड पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला होगा, है ना। तो आप जब इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करते हो ना बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर ही मिलेगा आपको। ये आपने सर्कल्स में आप आने वाले चैप्टर में या फिर मैंने पढ़ा चुका है, वीडियो तो बन चुकी है बच्चों, आप सर्कल्स के अगर वीडियोस में देखोगे, जब आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर ही रहते हैं, है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना। तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर परपेंडिकुलर भी है और सेंटर से भी पास हो रहा है तो ये क्या हो जाता है बच्चों, डायामीटर हो जाता है। आंसर क्या मिल रहा है अपने को, डायामीटर मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते हैं 5वां, देखते हैं 5th में क्या कहना चाह रहा है। 5th में अब क्या कहना चाह रहा है बच्चों, जस्ट उसी का एक्सटेंशन है जो 4th में हमने पढ़ा, उसी का एक्सटेंशन है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। उस समय हम लोग को दिया गया था बच्चों एक कॉर्ड, जब एक कॉर्ड का आपको इक्विडिस्टेंट क्या मिल रहा था बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा था। 2 पॉइंट्स अगर हम लोग देखा, नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो ये 2 पॉइंट्स है और 2 पॉइंट्स का इक्विडिस्टेंट लोकस क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, डायमीटर होता है सर्कल के केस में, अगर ये इनसाइड द सर्कल की बात हो रही है तो, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर इसके पैरेलल हम लोग सारी कॉर्ड्स ड्रॉ कर दें, कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या समझाना चाह रहा है। अब ये पैरेलल अगर हम ड्रॉ करते ना तो देखिए क्या डिफरेंस आ जाता है बच्चों। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द पैरेलल कॉर्ड्स of a circle is the diameter of the circle which is perpendicular to the given parallel chords। मतलब क्या हो गया, आपने जैसे हमने पढ़ा था ये कॉर्ड अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये डायमीटर कहां पे लाई कर रहा है, पास करेगा सेंटर ऑफ द कॉर्ड से। अगर यही कॉर्ड को हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दें तो भी ये सेंटर ही रहेगा, राइट बच्चों, ये भी सेंटर रहेगा इस कॉर्ड का। अगर ये कॉर्ड ले तो इसका भी ये सेंटर ही रहेगा, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना बच्चों कोई भी कॉर्ड का, तो वो सेंटर से ही होके जाता है, ठीक है। कोई भी कॉर्ड का अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से जाएगा, और सेंटर से जाएगा तो वो लाइन डायमीटर कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत आसान है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल पैरेलल कॉर्ड्स, समझ में आ रहा है। जैसे हमने एक कॉर्ड लिया तो उसका मिड पॉइंट आ रहा था, तो बाकी कॉर्ड्स लेंगे और पैरेलल लेंगे तो उसका भी तो मिड पॉइंट ही आएगा ना बच्चों। तो यही चीज एक्सप्लेनेशन की हुई है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डर लगने लगेगा, इसीलिए ये सब चीज पहले समझाया जा रही है, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या समझना चाह रहा है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ब्रैकेट में लिखा हुआ बच्चों। इन अ प्लेन क्यों लिखा हुआ बच्चों, क्योंकि ये प्लेन 2D की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। which is a given distance, the locus of a point which is at a given distance from a fixed point is the circle with the fixed point on its center and the radius। ये तो मैंने आपको समझा दिया बच्चों, तो ये वाला तो रहने दीजिए, ये वाला देखते हैं नेक्स्ट। ये भी
बहुत आसान है बच्चों। जैसे आपने टू पैरेलल लाइंस का किया था बच्चों कि दो पैरेलल लाइन अगर है हमारे पास, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस क्या होती है बच्चों? मिडवे एंड पैरेलल, राइट। क्या हो जाएगी? फर्स्ट तो हो जाएगी मिडवे और दूसरी क्या हो जाएगी? पैरेलल होगी इन दोनों लाइंस से। वही चीज अगर हम सर्कल के रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चों कि दो सर्कल है आपके पास, सोचो ये दो सर्कल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है। जैसे यहाँ पैरेलल हो रहा था, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? सेम रह जाता है। जैसे पैरेलल लाइंस के रिस्पेक्ट में मैंने आपको समझाया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रह जाएगा इनका, मैंने आपको ये समझाया था। तो उसी तरह से सर्कल जब कॉन्सेंट्रिक होते हैं ना बच्चों, तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी में भी यही बोल रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा बच्चों? तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहां डिस्टेंस x है तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, अगर हम लोग ये मानते हैं ये r1 है ना, और ये r2 है, तो क्या होना चाहिए बच्चों? इनका बीच का होना चाहिए, राइट। इनका बीच का मतलब क्या है? सोचो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो कितने हो गए? 8। आंसर कितना आना चाहिए? इनके बीच का गैप कितना हो गया? 2, यानी 1 में होना चाहिए, इससे 1 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 3 + 1 4, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना दिया गया है? r1 + r2 डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर हम लोग 5 + 3 लेते हैं बाई 2 करते हैं तो 4, यानी वही चीज आएगा। देखो इसके ऊपर का 1, अगर इनके बीच का गैप देख लो बच्चों, सबसे आसान क्वेश्चन क्या है? इनके बीच का गैप देख लो और इनका मिडवे बना लो। आपको फॉर्मूला की भी दरकार नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले खुद से कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हो जाएगा? ये वाला सर्कल हो जाएगा बच्चों, मिडवे। यानी मिडवे में जो सर्कल बनेगा वो ये वाला लोकस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है बात? अब इसका ठीक ऑपोजिट देखो, जैसे हमने टू पैरेलल लाइंस में लिया था तो आंसर क्या हो रहा था? लोकस क्या हो रहा था? मिडवे वाली। इसका जस्ट रिवर्स हमने क्या पढ़ा था? अगर एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है ना, तो उससे इक्विडिस्टेंट लोकस बताइए। तो उस केस में हमने पढ़ा था 2 होगा तो 1 मिलेगा, 1 होगा तो 2 मिलेगा। अगर एक लाइन से आपको लोकस निकालना है तो 2 डिफरेंट पैरेलल लाइंस मिलेगी, राइट, ऊपर नीचे। वही चीज सर्कल के रेस्पेक्ट में था बच्चों कि 2 सर्कल हो रहा है तो बीच का 1 आपको आंसर में मिल रहा था, और अगर 1 सर्कल होगा तो आंसर कितने हो गए? इक्विडिस्टेंट के 2 हो गए। क्यों? एक भीतर होगा और एक बाहर होगा बच्चों। तो ये अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में और लोकस निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं ऑफ अ सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन सर्कल, तो एक तो बाहर की ओर, एक भीतर की ओर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जस्ट, और कुछ नहीं है। ये रहा, ये यहां तक आपको ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों। लोकस का आपका लगभग कॉन्सेप्ट अगर आपने यहां तक देख लिया है तो आपका लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर। देखो क्वेश्चंस में आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करें एंड एक्सरसाइज भी खुद से सॉल्व करें, एंड जरूर से जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करें बच्चों, है ना। क्योंकि 99% में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी 90% केस में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बच्चों। तो और क्या है, पैटर्न, डेटा सिर्फ चेंज रहता है, पैटर्न वही रहता है, तो आपको आसान हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बच्चों। तो चलिए बढ़िए बच्चों, बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए बच्चों, अब एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मिक्स्ड अप क्वेश्चन आते हैं। जनरली एग्जाम में आपको क्या आएंगे बच्चों, डिफरेंट पैटर्न्स मिक्स करके दे देंगे। सिर्फ आपको 1 पॉइंट वाला नहीं देंगे, 2 पॉइंट वाला दे सकते हैं, 3 पॉइंट वाला दे सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पॉइंट्स है बस। आप अगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हो बच्चों तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है बच्चों। अब आपने तो पढ़ ही लिया 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या है, आपको 3 पॉइंट्स है, नॉन कॉलिनियर हो गए बच्चों, कनेक्ट कर दो। इक्विडिस्टेंट चाहिए तो क्या करना है आपको,
इक्विडिस्टेंट अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, अगर 3 या तो आप क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना बच्चों। तो पॉइंट बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट बोल रहा है। एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ लोकस नहीं निकालने बोल रहा है, यहाँ पॉइंट निकालने बोल रहा है, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। अगर लोकस होता तो बच्चों क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है बच्चों। तो जब हमें क्या करना है, जब इस केस में पॉइंट बोल रहा है तो हम इस 2 पॉइंट को लेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इस 2 पॉइंट को लेंगे, इसका 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीट क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था, ये जो एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है ना बच्चों, वो भी पास करेगा आपको यही पॉइंट से। लेकिन बच्चों ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये परपेंडिकुलर ही होता है, ये वाली ये जो लाइन होती है ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर होती है, जो कि एंगुलर बाइसेक्टर में लाई करती है। अगर लोकस बोला जाता तो बच्चों ये लाइन हो जाती, ठीक है। और अगर लोकस नहीं बोला जा रहा है तो ये पॉइंट पूछ रहा है, तो आंसर ये पॉइंट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, जो आपको डेटा दिया हुआ है। हमेशा कोशिश करें बेस लाइन पहले ले लें, बेस लाइन चूज करें बच्चों। ABC अगर दिया हुआ है बच्चों तो हमेशा BC को प्रेफर करें बेस बनाने के लिए। तो BC को 5 सेंटीमीटर अगर आप यहां रख लेते हैं तो दूसरा काम क्या हो जाता है बच्चों, CA, BC CA। अब CA मतलब क्या है, आपको कॉम्पास में CA यानी 4.6 का एक रेडियस बना लेना है और एक मार्क कर देना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 4.6 और AB दिया हुआ 3.8। उसी तरह से आपको क्या करना है, AB एक रेडियस मार्क कर लेना है 3.8 का एंड उसको कट कर देना है। तो ये कटिंग पॉइंट से आपको ये ट्रायंगल मिल जा रहा है बच्चों। ट्रायंगल तो बड़ा आसान से बन गया बच्चों। अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BC एंड AB। अब BC एंड AB से अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड अ पॉइंट पूछ रहा है बच्चों, यहां पे भी ध्यान रखना, फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन a point which is equidistant from BC and AB and also equidistant from B and C। पहले तो पूछा देखो बच्चों BC, find a point which is equidistant from BC and AB। तो BC and AB पूछ रहा है, तो हमें पता है क्या होगा बच्चों, ये लाइन जाती है और क्या कंडीशन क्या रख दिया, BC एंड AB से इक्विडिस्टेंट तो होने ही चाहिए एंड B एंड C से भी इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। तो B एंड C से इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। पहला तो एंगुलर बाइसेक्टर, जब लाइन दिख रहा है आपको, 2 लाइन की बात ये हो रही है तो एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा आपको आंसर, तो जो हम ये एंगुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। जब आपको बोला जा रहा है पॉइंट से, जो पॉइंट यानी टू फ्रॉम B एंड C बोल रहा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, ये वाला है। ये एक लाइन बन रही थी, ये एक लाइन बन रही है, ये एंगुलर बाइसेक्टर जो कि AB और BC की इक्विडिस्टेंट हो गई एंड B एंड C की इक्विडिस्टेंट हो गई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आंसर हो जाता है बच्चों इस केस में, ठीक है। तो बड़ा आसान है, आप थोड़ा इसको पढ़ लें। आपके पास अगर ML अग्रवाल की बुक है या फिर कोई भी बुक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ML अग्रवाल ही पढ़नी है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखें बच्चों, बुक सारी एक ही है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कोई भी बुक फॉलो करें, इट डजंट मैटर, बट हाँ एक ही बुक फॉलो करें। 10 बुक सॉल्व करने से अच्छा बच्चों क्या आता है, एक बुक को 10 बार सॉल्व करें, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको स्कोर कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सर्दी के कारण बच्चों थोड़ी नाक जाम हो रखी है, वॉइस इसलिए थोड़ी सी खराब आ रही होगी शायद, तो प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि काफी डिले हो जाता है बनाने में। तो चलिए बच्चों देखते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल BCP लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, वेयर BC इज इक्वल टू 5। पहली बात तो आपको मैंने हमेशा बोला बेस लाइन पहले बना ले, तो BC बना लिया। अब BP 4 दिया हुआ है तो आप आर्क बना ले BP का, और एंगल PBC दिया हुआ है, यानी अगर हम ये B और C बांधते हैं और आपको एंगल देखिए, इसमें एंगल PBC यानी ये पॉइंट से PBC आपको 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों आपने देखा कि एंगल दिया हुआ था 45 डिग्री, तो हम एंगल बना लेंगे एंड इसका ये लेंथ दिया हुआ है, तो ये कट करके आपका ट्रायंगल रेडी हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब कंडीशन देखो नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द रेक्टेंगल ABCD सच दैट, मतलब आपको रेक्टेंगल बनाना है बच्चों। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होती है सारी एंगल्स, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स। अब बोल रहा है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। देखो BC AB एंड BC से इक्विडिस्टेंट है P, यानी आपको जब पता है कि दो लाइन से कोई पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंट है बच्चों, तो वो कहां हो सकता है। पहली बात तो ये चीज समझे आप, वो कहां हो सकता है, वो 90 डिग्री, यानी अगर इससे इक्विडिस्टेंट है, ये पॉइंट क्या है बच्चों, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम AB एंड BC, तो आप एक लंबी लाइन बना रहे जो कि परपेंडिकुलर हो जाए बच्चों। तो ये एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, तभी तो ये लाइन इससे, ये पॉइंट P इससे और इससे इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या पूछे, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड D ऑल्सो। तो बच्चों इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि ये लाइन से इक्विडिस्टेंट है, यानी ABC यहाँ पे कहीं पे मिलने वाला है, ये पॉइंट आपको अभी तक फिक्स नहीं मिला बच्चों, ठीक है ना। अब आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड D। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है बच्चों, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड D। तो मैंने आपको बताया दो पॉइंट से जब भी होंगे, जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने की कोशिश क्या करो, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक तरह से तो PC का रेडियस ले लेना है ना, इसको रेडियस मार्क करना है और यहाँ पे भी कट कर देना है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल है तो भाई 90 डिग्री हो गई है ना, तो 90 डिग्री बना दो इसको, 90 डिग्री बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है, तो ये लेंथ आपको मिल गई, यहाँ पे इस लाइन में कट करेगी ये लेंथ आपको मिल गई बच्चों। अब ये लेंथ को मेजर करके यहाँ पे भी काट दो, तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाता है बच्चों। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ये 2007 में आ भी चुका बच्चों, तो उम्मीद है कि दोबारा आ सकता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से एक बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखे बच्चों एग्जाम में। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ बच्चों, कॉन्सेप्ट लिखने का फॉर्मेट आपको सुधारना पड़ेगा अपने लिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि ये भी 2007 में आ चुका है बच्चों। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC सच दैट, ABP बता रहा है, ट्रायंगल है, AB दिया हुआ है, BP दिया हुआ है एंड ABP दिया हुआ है, तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा बच्चों। अब ABP बोल रहा है तो AB बना लेते हैं, 5 दिया हुआ है, BP आपको 3 काटना है, AB और P यानी 3 काट दो बच्चों। एंगल ABP 30 डिग्री बोला हुआ है, AB और P यानी ये पॉइंट आपको 30 डिग्री में मिलने वाला है, ये पॉइंट आपको मिल गया तो इसको कनेक्ट कर देना है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रायंगल। अब आपको क्या बोल रहा है, कंप्लीट रोम्बस ABCD सच दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। ये पॉइंट P है और ये इक्विडिस्टेंट बोल रहा है AB एंड BC से, ठीक है ना बच्चों। फिर वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको इक्विडिस्टेंस बोल रहा है P, तो ये क्या होना चाहिए, एंगुलर बाइसेक्टर में लाई करना चाहिए। तो एंगुलर बाइसेक्टर में अगर लाई करना चाहिए तो ये 30 है, तो एंगुलर बाइसेक्टर यानी 60 डिग्री आपको बनाना है बच्चों, यानी ये 60 डिग्री आप बना लो। यहाँ पे सोचो ये एक लाइन बना लो। अब बोलोगे सर इसकी लेंथ क्या होगी, रोम्बस का आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कुछ नहीं कर रहा है बच्चों इस केस में, ये 60 डिग्री बन गया बच्चों, ये 60 डिग्री बन गया, ये लेंथ लेके यहाँ पे कट करो। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, वही लेंथ लेके यहाँ पे कट करोगे, है ना, यही लेंथ लेके यहाँ पे कट करोगे, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से कट कर दो, ये आपका रोम्बस रेडी बच्चों, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके क्लास 6-7 में पढ़ा होगा रोम्बस वगैरह के बारे में। क्लास 10 में आते आते अगर आपने थोड़ी सी एक टू भी प्रॉपर्टी अगर मिस कर देते हो तो क्वेश्चन आपसे छूट जाता है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। 5 में बच्चों देखो क्या पूछा गया है, ग्राफ का है, डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द बोथ एक्सेस। ये तो आपको आता ही है। प्लॉट द पॉइंट, तीनों पॉइंट आप कर लोगे बच्चों, प्लॉट करना है। अगर हम देखें तो एक बार रफली हम अगर बनाए तो सोचो 1 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। 5 3 अगर हम देखें तो 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे सोच लो, ठीक है बच्चों। और 2 7 बच्चों, तो 2 यहाँ पे 7 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्ट अब बोल रहा है 3 पॉइंट हो गया। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब आपको पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था बच्चों, ये ए था, ये बी था एंड ये सी था। अब लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो क्या करना है बच्चों, इनको कनेक्ट करना है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है। तो ये हो गया लोकस इसका, पहली बात। क्वेश्चन एग्जाम्पल ये 2 खत्म। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर बना देना है बच्चों। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ये वाला। तीसरा क्या है, लोकेट द पॉइंट ऑन P सच दैट PA इज इक्वल टू PB। अब आपको क्या बोल रहा है, PA इज इक्वल टू PB, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है PA और PB इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, मेजर द रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द PA, वो आप कर सकते हैं बच्चों। ये वाला थोड़ा सा खाली ग्राफ की मेहनत है बच्चों, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बड़ा आसान है ये वाला भी, देख के डरा रही है बच्चों कि ग्राफ पेपर है बोल के नहीं करे, स्किप नहीं करना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। आज हम हो सके एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे एंड टाइम में भी परमिट ना करें। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चों, देखो BC दिया हुआ है 6, तो BC चलो 6 बना लेते हैं। ABC दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये बन गया 120 डिग्री। अब A नहीं मिला है हमें, AB 3.5 काट देते हैं, 3.5 ये मिल गया ट्रायंगल आपको, ठीक है बच्चों। पहला पार्ट तो हो गया। इन द अबव फिगर ड्रॉ अ सर्कल विद BC एज अ डायमीटर। BC एज अ डायमीटर बोल रहा है, तो भैया क्या दिक्कत है, आसान है। 6 है तो 3 ले लो, सर्कल बना दो इसको, सर्कल बन गया बच्चों। फाइंड अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। AB और BC से डरना नहीं बच्चों, आपको 2 लाइन दी हुई है, इससे इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालने को बोला है। तो आपको पता है 2 लाइन से जब भी इक्विडिस्टेंट निकाली है तो एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो बच्चों, डन। एंगुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, find a point P on the circumference of the circle which is equidistant from AB and BC। तो ये मिल गया भैया बच्चों आपको पॉइंट P, राइट। एंगुलर बाइसेक्टर बना रहा बस, और कुछ नहीं करना था। मेजर एंगल BCP, अब इसको कनेक्ट कर लो, ये एंगल मेजर कर लो, कार्य खत्म है बच्चों। छोटी सी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। ये देखो ये भी पिछले साल 2 बार आ चुका है, 2013 एंड 2005 में आ चुका है बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्कोरिंग होते हैं बच्चों ये सब क्वेश्चन। 5 मिनट की मेहनत है बट जेन्युइन मार्क्स मिलेंगे बच्चों इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूज रूलर एंड कंपास ओनली फॉर द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑल द कंस्ट्रक्शन लाइन्स एंड आर मस्ट बी क्लियरली शोन। बच्चों ये सब आपको दिखा रहा है, ये भी 2016 का क्वेश्चन आ चुका है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, BC दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। तो बच्चों BC दिया हुआ है 6.5, एंगल ABC दिया हुआ है 60 डिग्री, ये बना लिया 60 डिग्री। AB 5 दिया हुआ है, AB 5 काट दिया, यहाँ A बन गया, ये ट्रायंगल बन गया बच्चों, पहला काम खत्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। अब लोकस ऑफ अ पॉइंट बोल रहा है देखो, और डिस्टेंस फिक्स किया हुआ है, तो क्या बनना चाहिए बच्चों, ये क्या बनना चाहिए, एक सर्कल बनना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल बनेगा। एक पॉइंट से आपको मैंने बताया था, एक पॉइंट से अगर आपको लोकस पूछा जा रहा है और इक्विडिस्टेंट पूछा जा रहा है तो हमेशा सर्कल बनेगा।
तो ये सर्कल बना दो यहाँ पे चुपचाप से बच्चों। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AC एंड BC। AC एंड BC तो क्या हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर बच्चों, है ना, दो लाइंस दी हुई है, दो लाइन से इक्विडिस्टेंस क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर। बस कंस्ट्रक्ट ये हो गया बच्चों, मार्क 2 पॉइंट्स X एंड Y सच विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 फ्रॉम A, 3.5 फ्रॉम A एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AC एंड BC। तो क्या होता है बच्चों, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा एंगुलर बाइसेक्टर से, ये लाइन से इक्वल डिस्टेंस में कौन है, ये है, ये लाइन है, एंड ये लाइन A से 3.5 डिस्टेंस में भी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट बच्चों और कुछ नहीं है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 है क्या, है बच्चों, चलिए ये देखते क्या है। ठीक है, तो 8 में पूछा गया है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विथ AB 3.5, BC दिया हुआ है, BC ले लेते हैं बच्चों पहले, BC दिया हुआ है 5 और AB अभी नहीं लेंगे, एंगल ABC 120 डिग्री है, तो ये 120 बना लेते हैं बच्चों पहले, और A को फिर काट देते हैं यहाँ पे 3.5 से, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PBC इन विच PB इज इक्वल टू PB, ये BC है, PB इज इक्वल टू PC। तो PBC आपको पता है 2 पॉइंट से करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनाना है बच्चों, है ना, एंड इक्वल इन एरिया टू द ट्रायंगल ABC। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको पता है जब ये ट्रायंगल का बेस है और इसी में हमें दूसरा ट्रायंगल भी बनाना है जिसकी एरिया इक्वल हो, तो आपको क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए बच्चों, ये हाइट चाहिए होती है बच्चों। तो आपको कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी, ये अगर हाइट है ना बच्चों, ये अगर हाइट मानते हैं इसको, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, है ना बच्चों, तो ये इसकी हाइट देगी, ये वाला ट्रायंगल की हाइट ये हो गई। तो इससे आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इससे, एंड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो ये आपका हो गया आंसर बच्चों, ये ट्रायंगल बन गया। आप कैलकुलेट करो इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर ये h है और ये भी h है तो बेस तो कॉमन है और हाइट सेम हो गई बच्चों, तो एरिया इक्वल हो जाना है। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है बच्चों। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, हो नहीं पा रहा, आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब चीज समझ में आया होगा। एंड बच्चों प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू।